یہ جو گند آتا ہے یہ باہر سے آتا ہے، جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ہے، جو گند کرتا ہے اس کو بین کیا جائے۔ اس کو لٹا کے مارا، ان کی ذہنیت، ان کی سینس چیک کر لیں۔ یہ میں التجا کروں گا محسن نقوی صاحب سے کہ یہ تھیٹر پہ پولیس آنا بند کی جائے، تو جن نمائندوں کے دور میں یہ وائلیشن ہوئی ہم سب کو سسپینڈ کر دینا چاہیے، ان کو کوئی پاکستان میں رہنے۔ کہ ہمیں ایسا لگا کہ ہم کچھ دہشت گرد ہیں، کوئی بم دھماکہ کرنے لگے ہیں اور ایک دم ہم پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ایسے رہتے ہیں جو سچ کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے، اس کے ساتھ اس طرح کیوں؟ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ قانون کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ریڈ کرے گی اور آرٹسٹوں اور عملے کو مارے گی۔ یہ میں نے آرٹس کونسل کا بھی پڑھا ہوا ہے، وہ جو ہمارا پرفارما ہوتا ہے جس پہ ہم سائن کرتے ہیں اور باقی چیزوں پہ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بندے کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے جس کا نام کیسر سلام ہے۔ نہ یہ میرا رازق ہے اور نہ یہ میرا کوئی باپ ہے، یہ بھائی ہے، اور مجھے اس بات کی اس سے بہت خوشی ہے۔ ہماری سوری ٹو سے کیسر سلام اللہ صاحب اور اپنی فیلڈ، وہ کہتے ہیں نا پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی صفیں ٹھیک کرنی پڑیں گی، جو جا کے ہم کہتے ہیں کہ محفل میں یہ ہو رہا ہے، الفلاح میں یہ ہو رہا ہے، شالیمار میں یہ ہو رہا ہے، اور وہ سارے جا کے کہتے ہیں کہ تماثیل میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ شکایتیں نہیں ہم آج تک اپنی کمیونٹی نہیں کر سکے، ایکا نہیں دکھا سکے، جس کی وجہ سے پانی ہمیشہ نچلی سطح کی طرف جاتا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ جب کوئی افسر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں آیا ہوں۔ حاشا للہ میں زیادہ لاہور میں کام کرتا ہوں، میرے بھائی بھی ہیں، میرے صحافی بھائی بھی ہیں۔ اصل موضوع ہمیشہ یہ جو گند آتا ہے یہ باہر سے آتا ہے، جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے نام نہاد پروڈیوسر اور لڑکیاں مل کے یہ گند کرتی ہیں، وہ ویڈیو بنتا ہے، جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے وہ لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں ہی ہو رہا ہے۔ میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور میں اس طرح کا کام، جیسے کیسر ہمارے جو ہے چیئرمین صاحب انہوں نے کہا ہے، کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں، کوئی ایک ایسا جسر دکھا دیں کہ جس میں اس طرح کی فحاشی اور ریانی ہوئی ہو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو گند کرتا ہے اس کو بین کیا جائے، تھیٹر کو بین نہ کیا جائے۔ یہ ہے صدیق چائے والا، تماثیل تھیٹر جو فنکاروں کو چائے دیتا ہے، اس کو لٹا کے مارا۔ ان کی ذہنیت، ان کی سینس چیک کر لیں کہ یار یہ کوئی فیمیل آرٹسٹ تھی جس نے ڈرامے کے دوران قمیض اتاری ہے ڈیرہ غازی خان میں یا بہاولپور میں، اس کو مارا۔ 75 سال کے بابے کو مارا، میرے اے سی والے کو مارا، سکورٹی گارڈوں کو مارا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے آئی جی صاحب نے، سید محسن نقوی صاحب نے اور عامر میر صاحب نے بتانا۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو ولگر کرتا ہے، قصور میرا ہے، میں گندی بات کرتا ہوں، اس کی سزا امجد رانا، طاہر مشاہدیہ اور کسی کو کیوں ملے؟ مجھے بین کیا جائے۔ جس نے بھی کیا ہے، میں اپنے پروڈیوسر کی اجازت کے ساتھ چیئرمین کی، اس کی بات کو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کنیزیں نہ اتریں، پیسے نہ سیٹ پہ پھینکے جائیں، جو تھیٹر کا کام نہیں ہے۔ 2 چیزوں کا ایجنڈا تھا ہمارا۔ کسی کی شکایت نہیں کی کیسر ثناء اللہ نے۔ حلفاً میں کہتا ہوں، میں پچھلے 2 مہینے کے ساتھ اس بندے کے ساتھ آیا ہوں، اس کا ایجنڈا یہ ہے، یہ جو گند آ رہا ہے جس کا پورے آرٹسٹ جس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیسر ثناء اللہ صاحب۔ انہوں نے کسی کی شکایت نہیں کی، نہ تماثیل، نہ الفلاح، نہ محفل، نہ شالیمار یا شیخوپورے کے جتنے تھیٹر، کسی کے نہیں۔ اس نے کہا جہاں پہ قمیض اترتی ہے، جہاں پہ گند ہوتا ہے، وہ بند کیا جائے، پیسے نہ پھینکے جائیں۔ اگر یہ بات غلط کر رہا ہے بندہ تو پھر جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت اچھا ہوا ہے۔ خدارا ایک تھیٹر سے کم از کم 70 سے 75 بندے ہوتے ہیں، میرا بھی گزارا ہو سکتا ہے، میں بھی 1 مہینہ کا رگڑا سہ جاؤں گا۔ یہ جس کو تھپڑ پڑے ہیں، یہ روز کیسر صاحب سے پیسے لیتا ہے اور گھر میں جا کے کھانا بناتا ہے۔ اسی طرح گارڈ ہے، وارڈ روب والا ہے، پریس ماسٹر ہے، میکر مین ہے، اس طرح کے لوگ کہاں جائیں گے؟ پلیز اپنے حکم پہ نظر ثانی کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو گند کرتا ہے اس کو ختم کیا جائے، اس میں ہمارا چیئرمین بھی آپ کے ساتھ ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔ طاہر مشاہد صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ہم یہ کہیں تو جتنے سال
साल हो गए काम करते हुए, सबसे ज्यादा मुझे जो बात बुरी लगती है, पहले दौर में जब हम काम करते थे सिर्फ आर्ट्स काउंसिल इंटरफेयर करती थी, अभी पुलिस भी आ गई और भी इदारे आ गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि अगर तो पुलिस ने आना है, दूसरे डिपार्टमेंट ने आना है, तो फिर आर्ट्स काउंसिल को खत्म कर दिया जाए। आर्ट्स काउंसिल का नाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो कौन होते हैं आके हमारा ड्रामा सेंसर करने वाले? वो कौन लोग हैं जो आके ड्रामा देखते हैं और चले जाते हैं, बाद में वो रिपोर्ट नहीं देते? वो छापा मार दें, जाके रिपोर्ट दें, और कोई गलत कर रहा है और बड़ा अच्छा वो हमें बताते भी हैं, कहते भी हैं। मैं ये कहता होता हूँ कि इतने डिपार्टमेंट आके ड्रामा देखते हैं, हमें वो नुक्स बताते हैं, हम ठीक कर देते हैं, जब फिर भी पुलिस आए तो बहुत बुरी बात है। ये मैं इल्तिजा करूंगा मोहसिन नकवी साहब से कि ये थिएटर पे पुलिस आना बंद की जाए और सिर्फ आर्ट्स काउंसिल का दखल होना चाहिए। कैसर सनावला साहब की जितनी दरखास्तें हैं इनकी चेक कर लें। इन्होंने ये कहा कि जिन थिएटरों में बुरा काम हो रहा है, गंदा काम हो रहा है, उनको बंद किया जाए। तो उन आर्टिस्टों को शर्म आनी चाहिए, उन प्रोड्यूसरों को शर्म आनी चाहिए कि अगर वो काम अपने थिएटर में करवाते हैं, आर्टिस्ट करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि वो क्या करते हैं। हमने कितने साल हो गए काम करते हुए, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और सबसे बड़ा दुख आज ये हो रहा है कि हम लोग इकट्ठे नहीं हैं। मुझे शर्म आ रही है कि हम यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। हमें हया होनी चाहिए, कोई ऐसा मसला हो कि सब इकट्ठे होके आए, सब इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म से बात करें। जब नॉमिनेट लोग आके बात नहीं करेंगे तो कौन सुनेगा? तो जब ड्रामा शुरू हो जाएगा, उसमें सारी कैसेट सनावला की या दूसरे लोगों की मेहनत होगी, तो जब ड्रामा शुरू हो जाएगा, सारे ड्रामे में पेमेंट लेने के लिए सारे पहुंच जाते हैं। प्रेस क्लब में क्यों नहीं पहुंचे? कितनी घटिया हरकत है ये। तो मुझे बहुत दुख हुआ है अपने फनकारों पे भी। हम जो हर थिएटर की टीम इधर होनी चाहिए थी। हम नौकर लगे हुए किसी के, हम मुलाजिम लगे हुए किसी के आगे, हम आके अकेले आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शर्म होनी चाहिए इन फनकारों को। ये इकट्ठे भी होते हैं, ये ऐसी जलील हो गए। बड़ी मेहरबानी। अमजद राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिंपल बात करूंगा और सारी बात इसमें ही होगी कि 3 डिपार्टमेंट हमें चेक करते हैं ड्रामे के, डीसीओ का नमैता, आर्ट्स काउंसिल का और होम डिपार्टमेंट का। अगर कोई वायलेशन 15 साल से या 20 साल से हो रही है तो हमारे पास सेंसर लेटर आता है, वो वहां भी मौजूद है। तो जिन नमैतों के दौर में ये वायलेशन हुई है, उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। उनको कोई जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि कैसर सनावला साहब एक अदब लेकर उठे, जिन्होंने कहा कि फहाशी, रुयानी और तमीज़ें नहीं उतरनी चाहिए, मुजरों की तरह ड्रामा नहीं होना चाहिए। हमारी बड़ी बेवकूफ़ी थी, हम नहीं समझते थे जिन लोगों के पास हम गए हैं वो सब लोग उनसे मिले हुए हैं। ये बात है कि जिनके लिए हम जिनके पास अपना हक लेने के लिए गए थे वो लोग उनसे मिले हुए हैं। आज फहाशी जीती, हक जो है वो हार गया। जहां साफ काम हो रहा है वहां पर ये साजिश की गई और माफिया जो है वो जीत गया और हम बेबस लोग हार गए। बहुत अच्छी बात की है कि आज फनकारों को एक होना चाहिए, आज प्रोड्यूसरों को एक होना चाहिए। कैसर सनावला कोई खाली ठेकेदार तो नहीं है, इसी का थिएटर तो नहीं है, पूरे लाहौर के थिएटर हैं, सारे लाहौर के थिएटरों के जो मालकान है सबको इधर होना चाहिए। बाकी कमिश्नर साहब ने जो किया है और हमने वो देखा, ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हम कुछ दहशत गर्द हैं, कोई बम धमाका करने लगे हैं और एकदम हम पर हमला कर दिया गया है। हमें ना पता लगा ना हमें कुछ ऐसी बात हुई। बाकी जितने भी आला अफसरान हैं जो हमें चेक करते हैं, वो इतना चेक करते हैं कि साथ अपने दोस्तों को भी लाते हैं हमें चेक करने के लिए। वो आकर ना अपने दोस्तों को भी दावत देते हैं, आज हम चेक करने जा रहे हैं, जिनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता, उस काम से उनका ताल्लुक भी कोई नहीं होता, अपने दोस्तों को लाकर सेंसर देखते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए कि यार ऐसी हरकत आप लोगों ने की, बूढ़े बंदों को चपेड़े मार रहे हैं, मुलाजमों को चपेड़े मार रहे हैं। शर्म नहीं है यार, इतना जुल्म करते हैं आप लोग, इतने जुल्म करते हैं। एक वो यूनिफॉर्म जिसमें आपको ने लोगों की हिफाजत करनी है, गरीबों की हिफाजत करनी है,
उन लोगों को एक कैसेट सुनाऊंगा जो सच के लिए लड़ रहे हैं। ये रहमान शौकी एक्टर है, शेखपुरा में काम कर रहा था। तो जिस रात कमिश्नर साहब ने इधर पुलिस वालों के साथ अटैक किया, तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में ये बता दें कि पुलिस वालों ने रहमान शौकी के साथ क्या किया, वो खुद बताता है आपको। मैंने स्पेशल इसको बुलाया। इस तरह के मेरे थिएटर में 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिनको तशद्दुद किया गया। शेखपुरा में क्या हुआ जरा सुन ले मीडिया। मैं रामी शेख ड्रामा कर रही थी फुल्लाली चौक पर कारक साहब को शो खत्म हो रहा है कि ਅਸੀਂ ਨਾ मतलब पैसा तलवार में देने पैसा चुके लाते हैं ਅਸੀਂ पैसा लेंगे तो खाना लेके अंदर को हमने आ गया ਸੀ जो खाना खा के तो फिर लेने पैसे और जब मैंने कोल आ गई कि मैं पुलिस में चल गई तो दो राजियों से भाई लेकिन हम सभी फायदा इस पब्लिक के अंदर लोग थे ऐसे एक्टर लेडीज भी सारे फुकार से उन्होंने जिन्हें खबर है ना कुंडी के अंदर कौन कर बाकी के अंदर सुने कि मैं शायद जाकर रुक गई हूं जनरेटर के पीछे तो 2 बंदे इन्होंने लिया मारी तो मेरे मारी थी तो गेम मारते मार के ना मैंने खिंचिया जमीन पे घरीस गया उन्होंने क्या घरीस गया तो मैं तो छो यार उन्होंने फेंक दिया ਤੇ मैंने तो राशि नहीं तो ये कि 8000 रुपये ਸੀ उन्होंने लिया ने ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਕਰੀਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਲੋਟ ਕਰੀਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ये वो सारी बातें हैं जो आमिर मीर साहब को और सैयद मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता कि 2 दिन पहले पुलिस ने क्या लूट मार की है और किस तरह लोगों को मारा। चलो जी विकी साहब जी, ये देख लिया आपने, मीडिया ने भी देख लिया, मोहसिन नकवी साहब ने भी देख लिया। बड़ी मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के इल्म में ये बात ना हो, कमिश्नर खुद से उठकर आ जाए, ये मैं नहीं समझ सकता। बाकी रही बात ये कि जितना जुल्म सितम हुआ वो सब आप मीडिया के सामने है। अभी ठाकर लोहड़ी साहब का भी नाम इन्होंने लिया था कैसर साहब ने, और बंदा है कि ठाकर लोहड़ी साहब हमारा मेरा नाम जोकर ड्रामा जो है वो फैमिली ड्रामा जिसमें हमने जद्दोजहद की है, हमें उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, हम सिर्फ फैमिली थिएटर करना चाह रहे थे कि हम फैमिली को दोबारा लेकर ले आए, जिसमें मदनी साहब भी रोज आकर देखते थे और भी साहब भी आकर देखते थे। एक एक बंदे को बुलाया गया, क्यों बुलाया? आर्ट्स काउंसिल के फैमिली को बुलाया गया, होम डिपार्टमेंट की फैमिली को बुलाया गया कि आप प्लीज आकर हमें देखें, अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमें अंदर कर दें, अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें उसकी दाद दें, प्लीज खुदा। लेकिन जहां पर कुरियानी हो रही है वो लोग उनसे मिले में, अब हम क्या करें? हम अपना हक मांगने जाए तो जाएगा। मोहसिन नकवी साहब बड़ी उम्मीदें रखी हुई अपने आप पर, आप निगरान से आ रहा है, हमारे लिए अब सारी जिंदगी के लिए आ रहा है। हम चाहते हैं मोहसिन नकवी साहब हमारा हक हमें दे दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा, मैं एक बात सुनाना चाहता हूँ कि बड़े पुलिस वाले ऐसा करते हैं और मेरा मोबाइल मेरे घर से आके चोरी करके ले गए। हमने 15 दिन हो गए दरखास्त दी हुई है, आज तक वो नहीं कर सके। लिटन रोड थाने आज लिटन रोड थाने के अंदर मैंने दरखास्त दी थी, मेरी बेटी से घर आकर मोबाइल छीन कर ले गए, उसकी इंक्वायरी नहीं कर सके। आगे इन्होंने क्या करना है? ये जितना कुछ भी ये कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब प्लीज प्लीज, आप सैयद साहब हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत नाइस इंसान है, मेरे दोस्त भी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, खुदा हमें हमारा हाथ दे। अस्सलाम वालेकुम जी। 1 मिनट। लाहौर में हमेशा प्यारे ड्रामे पेश किए गए, लाहौर हमेशा से अच्छे ड्रामे करने वाला शहर रहा और लाहौर में होने वाले ड्रामे शाहकार बने, पूरी दुनिया से उस ड्रामों की तारीफ हुई। तमासील में जो खेल हुए संगे मील साबित हुए। आज तक तमासील में होने वाले ड्रामों को कोई क्रॉस नहीं कर सका, जितने जितने साल वो ड्रामे चले। अब एक बंदा जिसका नाम कैसर सलाउल है, ड्रामे को उसकी असली शक्ल में वापस लाना चाहता है, आप उसकी अपनी शक्ल खराब करना चाह रहे हैं। खुदा उसने बेड़ा उठाया अच्छे ड्रामे करने का, प्लीज उसे अच्छे ड्रामे करने दे, मेहरबानी। जो टाइम में उन्होंने पुलिस वाले ने गल की थी चलो फटाफट करो फटाफट। अस्सलाम वालेकुम।
डाले में रख रहे थे, ये मैंने आंखों से देखा। और मैं वहाँ खड़ी थी और पुलिस वाला भाग के मेरे पास आया, कहता चल भाग जा इधर से वरना तुझे अंदर कर देंगे। वो लोग ये लोग क्यों हम गरीबों की सुनते हैं? बाहर कैसे काम है कि मुझे गरीब को सड़क से उठा के ये सारा मीडिया जानता है, सारा मीडिया जानता है। सारे मेरे पास आए रोड पे कहीं मैं चाय बेच रही थी और कैसे काम मेरे सर पे हाथ रखा के बेटा तुम लोगों के बर्तन धोने छोड़ दे, तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ काम करो, जो मैं तुम्हें दूंगा। और ये लोग हमारे साथ ऐसे रहते हैं जो सच के साथ चलने वाला बंदा है उसके साथ इस तरह क्यों? मोहसिन नकवी साहब, मैंने सबको जितने भी लोग हैं मेरे इन सबको मैंने एप्लीकेशन हाथ की कि हम सबकी सुनी जाए गरीबों की, लेकिन कोई गरीब भी नहीं सुनता। ये बात कैसे साहब है जिन्होंने मुझे सच पे हाथ रखा। मैं सलाम करती हूँ इस बंदे को। थैंक यू। सैयद मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जेक्टिव में, सारी जिम्मेदारी उनकी है। उनको ये पहलू और मीडिया को ये पहलू नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ। ठीक है जी। तो सैयद मोहसिन नकवी साहब के लिए एक छोटा सा 2 लाइनों का शेर है, फिर माइक ने इधर जाना है कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, ये IG साहब के लिए है, CCPO साहब के लिए है और आमिर मीर साहब के लिए। उस दौर के हाकम से ज़रूर कोई भूल हुई है। ठीक है जी। अगर ये लोग बहुत अच्छे हैं तो DVR में सारी बदमाशी का रिकॉर्ड है पुलिस वालों का, हमारे ड्रामे का, हमारी कारकर्दगी का। DVR वापस कराएं, सारी चीज़ें पैसे वापस कराएं और DVR से ही सारा नतीजा निकालने कि इन्होंने क्या लूट मार की है। वही जट साहब सीनियर प्रोड्यूसर। जी साहब, मैं तो कैसर सनाउल्ला साहब डिविजनल सैकटरी अदनान साहब को मिले सर जाके उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी। मैं क्या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने CCTV कैमरे लाए ने, इस तरह के हालात के अंदर भी कैमरे ला दो, लिहाजा ख़त्म हो जाए मॉनिटरिंग। 3 महकमे ने 4 महकमे ने प्रोग्रेस 0 हो गए, लिहाजा कैमरे लग जाएंगे सारा रोला ख़त्म हो जाएगा। मेहरबानी। रहील शाह साहब सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, अलफला थिएटर। लोगों ने इतना कुछ कह दिया कि कहने को कुछ बचा ही नहीं है। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इतनी ज्यादती न करें कि जुल्म रहे और अमन रहे। शुभाना। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह से पनाह मांगती अपने लिए और अपने तमाम साथी फनकारों के लिए और प्रोड्यूसरान के लिए और आपके लिए भी। अल्लाह की पनाह के सिवा कोई कुछ नहीं है। और देखें, मैंने सन 80 से काम शुरू किया है। मैंने सब अच्छे फनकारों और अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है और मैंने एक सदी देख ली है। मैंने कभी साथ से भी काम किया, मैंने इरफान हुसैन के साथ भी काम किया, शौकत थानवी के साथ भी काम किया, सजाद सजाद के साथ भी काम किया, जो एक तारीख रखते हैं, नॉलेज यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। इस तरह से कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। पहले तो ये कि आप खामोश हो गए, थोड़ी सी खामोशी होगी तो बोलेंगे बहुत बोल रहे हैं आप लोग, सुने प्लीज, कभी सुनने का हौसला भी होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुख्तसर सी बात करूंगी, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। इस तरह से नहीं होता जिस तरह हमारे साथ हुआ है, इसलिए कि कैसा कैसा सना होगा, सबको अपनी पनाह में रखते हैं, सबके पर्दा बने हुए। ये पर्दा हटाने वाले कौन है? हम सबका पर्दा रखा हुआ उसने। अच्छे ड्रामे होते हैं, मैं कहती हूँ उस बंदे की जुर्रत और हिम्मत है कि वो अच्छे ड्रामे करता है, सारी सारी रात अच्छे ड्रामे के लिए रेशन करता है, खुद भी जानता है, सब कुछ करता है। और इसलिए खराब है कि वो ड्रामा अच्छा पेश कर रहा है, इसलिए कि वो ड्रामे में वो पैसे नहीं देख रहा। इस तरह ना करे, ना इंसाफी है। और मैं ये कहना चाहूंगी आखिरी बात, रिक्वेस्ट है मेरे कमिश्नर साहब से सरे चले जाओ, मधु बिठा देंगे। मोहसिन नकवी साहब से कि हम सैयदों के नाम है और आप मेहरबानी करें, ड्रामे जो थिएटर है उन्हें ओपन करें, इस तरह ना करें। और कैसर साहब ने कोई ख्वाहिशी कभी भी नहीं हुई, इसलिए कैसर साहब सामने आए हुए कि ये सब को रोकते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। अलपुरा वाले और कैसर सनाउल्ला अच्छा ड्रामा करता है और करता रहेगा। खुदारा आप साथ थे और हामिद मीर साहब मेरे सामने आए, मेरे लिए मोहतरम है। आमिर मीर
आमर में आमर मीर साहब की, और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आर्टिस्टों को साथ दें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, चले चीज किए थिएटर ये खुल भी जाते हैं, आपके वालों में ये घंटे भी खुल सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ये खुदारा लोगों के चूल्हे बंद हुए हैं फनकारों के 2 दिन में। आप उस तकलीफ को नहीं महसूस कर सकते जो मैं तकलीफ महसूस करी, आप फनकार कर रहे हैं खुदारा के चूल्हे खोले हमारे, चलने गए हमारे चूल्हे खुदा के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका यही कहूँगा कि अरसा दराज से तमाशील के काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे ड्रामे कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं, हमारे साथी भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। जो ड्रामे पे रेट हुई हमारे, वो बड़ा अच्छा ड्रामा मेरा नाम जोकर, जिसको पब्लिक बहुत पसंद कर रही थी और जिसमें हम सब फनकारों को बड़ी रात मिल रही थी, उस पर आके छापा मारा गया और छापा भी जुमेरात को मारा गया। और इसी का हमारे छोटे से हाथ से हो सकता है कि जो सेंसर ऐसा हमारी देखने आते हैं लोग, कोई बच्चे वाला है, कोई रेडी लगाता है, कोई शरबत लगाता है, उनका हमारे काम से कोई तल्लुक नहीं है। हमारा काम ऐसे सही हो सकता है अगर आप लोग हमारे इरफान खुशर साहब, हमारे मुनीर राज साहब, हमारे निसार कादरी साहब, हमारे अपना मुनूर साहब, राशिद साहब, उनको हमारे ऊपर सेंसर असर के लिए भेजे। उनको हर चीज का पता है, एक्टर का भी पता है, म्यूजिक का भी पता है, डांस का भी पता है, और उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये जो हमारी रिहर्सल देखने आते हैं, ये 25-25 लोग साथ लेके आते हैं, क्या उनका रुहाई होते साडा कितना टैग है, साडे को कितना डरते हैं, सब लाइन चेंज होने नहीं आटा भी लगे जैसे प्रकार। प्लीज मोहसिन नकवी साहब, साडा ख्याल किया जाए, साडे खेल खोले जान, असी बड़े परेशान हाँ। कल आखिरी तरीक के बिल की 45,000 बिल मिलता है गरीब आदमी, पहली तरीक में किराया देना, ताकि खैर साडे थिएटर खोल दे, तुहानू रब दा वास्ता। आखिरी रिक्वेस्ट है सारे मीडिया से कि 2 लाइनों की बात है। एक जो तशद्दुद हुआ है, चोरी डकैती हुई है, लूट मार हुई है, मैंने दरख्वास्तें दी हैं आईजी साहब को, वज़ीर आला साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को। वो इंक्वायरी एक्शन होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने ये किया तोड़ फोड़ सारा। और दूसरा, अच्छी खबर आनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, आप इसमें पुल का किरदार अदा करें कि हमें फ़ोन आ गया कि अपने थिएटर खोलें, साफ़ सुथरे ड्रामा करें। किसी फहाशी उरियानी के 1% हम एसोसिएशन हक में नहीं है, लेकिन असल बंदे को पकड़े जो गलती करता है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ थैंक यू वेरी मच सारे मीडिया का।